خلافت کیا ہے؟ خلافت مسلمانوں کے نظام حکومت کا نام ہے جو کہ حضرت ابوبکر صدیق سے شروع ہو رہا ہے اور ترک عثمانی خلافت پر اس کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ تو ترکی ایک بہت بڑی اسلامی سلطنت تھا جس کی سرحدیں شمالی افریقہ سے لے کے مشرق وسطیٰ تک پھیلی ہوئی تھیں اور حجاز مقدس کے علاقے بھی اس میں شامل تھے، اور امت مسلمہ جو تھی وہ خلافت کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھتی تھی، اور خلیفہ کا نام جمعے کے خطبے میں لیا جاتا تھا، اور تمام مسلمان جو تھے وہ ایک طرح سے ایک مرکز پر جمع تھے۔ لیکن یہ چیز برطانوی حکومت کو اور استعماری جو طاقتیں تھیں ان کو یہ کھٹک رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان ایک مرکز پر جمع رہیں، کیونکہ ایک مرکز پر جمع ہونے سے آپ کی قوت جو ہے وہ مجتمع ہو جاتی ہے اور آپ اس کے ذریعے سے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو استعماری طاقتیں بالکل بھی نہیں چاہتی تھیں کہ مسلمان ایک مرکز پر جمع ہوں، کیونکہ وہ ایک بہت بڑی طاقت بن سکتے تھے اور آنے والے وقت میں وہ ان کے لیے خطرہ تھے۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ اس مرکز کو ختم کیا جائے، خلافتی نظام کو ختم کیا جائے، بلکہ فلسطین کے اندر ایک اسرائیلی ریاست یہودیوں کے لیے قائم کی جائے۔ تو یہ سارا جو ہے وہ اس کا پس منظر ہے۔ تو 1914 میں جب جنگ عظیم اول کا آغاز ہوا، تو یہ جنگ عظیم کسے کہتے ہیں کہ جس میں 2 سے زیادہ ممالک شامل ہوتے ہیں۔ اب آپ خود دیکھیں کہ ایک طرف اس میں برطانیہ، فرانس، امریکہ اور روس ہیں، یہ وہی استعماری طاقتیں ہیں جو نہیں چاہ رہی کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک مرکز پر جمع ہوں، یہ اتحادی ہیں، اور دوسری جانب جرمنی، آسٹریا اور ترکی ہے، یہ 3 عالم ملک ہیں۔ تو ان دونوں کا اس جنگ میں مقابلہ ہے۔ اب مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان ہندوستان کے اندر غلامی کی حالت میں ہیں، اور حکومت برطانیہ جو ہے وہ ان کے ماسٹرز ہیں، اور مسلمان یہاں پر ان کے غلام ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ وہ جس ملک سے اپنا ایک مذہبی عقیدت رکھتے ہیں، خلافت سے محبت رکھتے ہیں، وہ دوسری سائڈ پہ ہے۔ تو ترکی جو تھا اس کو دنیا بھر کے مسلمانوں کا مرکز مانا جاتا تھا۔ ترکی کے خلیفہ کو بر صغیر کے مسلمان اپنا خلیفہ تسلیم کرتے تھے، مگر ترکی ان دنوں زوال پذیر ہو چکا تھا، امکان تھا کہ اسے شکست ہو جائے گی۔ یعنی 5 سال یہ جنگ جاری رہی ہے، اور 1919 میں جب اس کا اختتام ہوا ہے تو جرمنی، آسٹریا اور ترکی جو تھے ان کو شکست ہو گئی۔ برطانیہ، فرانس، امریکہ اور روس، یہ جو اتحادی ملک تھے اور ظاہر ہے یہ اس وقت کی بڑی طاقتیں تھیں، ان کو فتح ہو گئی۔ تو اب اس صورت میں یہ اندیشہ تھا مسلمانوں کو کہ ایک تو یہ مرکز ختم ہو جائے گا، پھر اس شکست کی صورت میں یہ ہوگا کہ جو اتحادی ممالک ہیں وہ ان کے ترکی کے حصے بکھرے کریں گے اور وہ ٹکڑے آپس میں بانٹیں گے۔ تو حجاز مقدس کے علاقے بھی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ، یہ بھی ترکوں کے کنٹرول میں تھے۔ تو اس طرح سے اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ یہ شہر بھی خدا نخواستہ اتحادیوں کے کنٹرول میں جا سکتے ہیں۔ تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے بر صغیر کے مسلمانوں نے 1919 میں ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز کیا، اور یہ خلافت کے تحفظ کی جو یہ تحریک ہے اس کو تحریک خلافت کا نام دیا جاتا ہے۔ اس تحریک کے جو قائدین ہیں وہ آپ دیکھیں گے ان میں مولانا محمد علی جوہر ہیں، مولانا شوکت علی، مولانا حسرت موہانی، مولانا ظفر علی خان، ابوالکلام آزاد، حکیم اجمل خان اور دوسرے رہنماؤں نے اپنی داخلی سیاست کو نظر انداز کر دی۔ یعنی ایک ملک کے اندر بھی تو ہمیں مسائل ہیں نا کہ ہم نے ہندوؤں سے اپنے حقوق لینے ہیں، ہم نے جی حکومت برطانیہ سے یہ ہم منتیں کرتے رہتے ہیں کہ جی ہمیں جداگانہ نظام حکومت چاہیے، نظام انتخاب چاہیے، ہمیں جو ہے وہ اپنی یونیورسٹی چاہیے، ہمیں کاؤنسل میں صحیح نمائندگی ہو، ملازمتوں میں کوٹا سسٹم ہو، یعنی اندر بھی ہے تو ہمارے کتنے مسائل ہیں، تو اس سے بھی ہم نے نمٹنا ہے۔ تو اس سب چیز کو اس ٹائم مسلمانوں نے نظر انداز کر دیا، کیونکہ یہ اب معاملہ مذہب کا تھا، تو مسلمان اس کو اب اپنی پہلی اور اولین ترجیح سمجھتے ہوئے تو انہوں نے یہ تحریک چلائی ہے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے خلافت کمیٹی قائم کی، مجلس خدام کعبہ کو منظم کیا، اور بہت سی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ایک تحریک سے ریلیٹڈ وہ شروع ہو گئی۔ یہاں پر یہ تمام قائدین کی یہ تصاویریں آپ دیکھ سکتے ہیں، مولانا محمد علی جوہر ہیں، ظفر علی خان، شوکت علی، ابوالکلام آزاد، اور یہ مہاتما گاندھی۔ آپ کہیں گے کہ جی یہ مسلمانوں میں یہ کہاں سے آ گیا؟ ہوا یہ کہ جس وقت ہمارے جو قائدین تھے وہ ظاہر تحریک چلا رہے تھے تو یہ حکومت کے خلاف تھی، تو انہیں ظاہر گرفتار کر رہے تھے وہ، تو ہمارے پاس پھر کوئی جب لیڈر نہیں بچا تو مہاتما گاندھی آگے بڑھ کے اس نے اس تحریک کی کمان سنبھال لی، اور وہ کیوں سنبھال لی یہ ہم آگے دیکھیں گے کہ اس کا اس میں کیا فائدہ تھا۔
अब इस तहरीक के मकासद क्या होने चाहिए? इसके बहुत से मकासद थे। एक तो ये कि इसने बड़े सगीर में मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर दिया। इससे पहले जो आम अवाम मुसलमान थी वो सियासत में इतनी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन जब खिलाफत का मसला हुआ तो मुसलमान उठ खड़े हुए। उस वक्त तो उनको ना अपनी जान की परवाह थी, ना माल की परवाह थी, कोई भी, ना उन्हें किसी हुकूमत बरतानिया का डर है, ना किसी का डर है। वो सिर्फ अपनी खिलाफत को बचाना चाहते हैं और उनको ये खदशा है कि कहीं जो है हिजाज मुकद्दस की सरजमीन पे गैर मुल्की जो ये कुव्वतें हैं इनका ना कब्जा हो जाए। तो तमाम मुसलमान जो थे वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो गए और वक्ती तौर पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से भी मुस्लिम अवाम की तवज्जो हट गई और मुस्लिम लीग बतौर जमात के इस तहरीक में उस वक्त शामिल नहीं थी, क्योंकि जैसा कि हमने इसके पहले मकासद में देखा था कि वो उन्हें इस बात का खदशा था कि कहीं उनको उनके खिलाफ फिर हुकूमत बरतानिया ना उन्हें फिर जो है दबाने की कोशिश करे और इस तहरीक को यानी जो पार्टी है उसको ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश की जाए। लिहाजा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं थी, मगर अवाम मौजूद थे, पार्टी की तरफ से नहीं, खुद से। और वो खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान और माल की बाजी लगाए बैठे थे। तो तहरीक के ये तीन मकसद थे। एक तो ये कि तुर्की बहसियत एक मुल्क कायम रहे और शिकस्त की सूरत में उसकी जोग्राफियाई सरहदें जो कि दूर रहें और उसके टुकड़े ना किए जाएं। यह है तो नामुमकिनात में से। जब भी कभी जंग में किसी मुल्क को शिकस्त होती है तो फतह पाने वाले मुल्क की मर्जी होती है वो जो भी उसके साथ करे। ठीक है, बहरहाल मुसलमानों का ये मुतालबा था कि तुर्की के हिस्से बखरे ना किए जाएं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी सल्तनत थी जिसमें गैर मुस्लिम जो है इलाके भी शामिल थे और मुस्लिम इलाके भी शामिल थे और हिजाज मुकद्दस के इलाके भी थे। नंबर 2 पॉइंट ये है कि हिजाज मुकद्दस की हुर्मत पर कोई आंच ना आए, गैर मुस्लिम अफवाज इन दोनों शहरों में दाखिल ना हो। ठीक है, ये सबसे एक जो है वो तशवीशनाक बात थी कि खुदा न खास्ता ऐसा कुछ ना हो। फिर खलीफा मौजूद रहे और खिलाफत का इदारा अपनी हैसियत बरकरार रखे। इसी को ही तो वो ख़त्म करना चाहते हैं कि मुसलमान एक मरकज़ पर इकट्ठे ना हो, वो एक ताकत ना बने। तो खिलाफती निज़ाम होगा तो मुसलमान एक खलीफा के ताबे रहेंगे, बेशक वो किसी भी मुल्क में रहते हैं। खलीफा जो हुक्म देगा वो सर तस्लीम खम करेंगे। तो वो जहाँ साम्राज्य कुव्वतें इसे ख़त्म करना चाहती थी, मुसलमान चाहते थे कि खिलाफत का इदारा बाकी रहना चाहिए। अब इस तहरीक ने क्या किया, उसकी एक्टिविटीज़ क्या थी? तो उसके तहत जो थे वफूद भेजे गए, यानी डेलीगेशन बनाकर जो थे ये वफूद यूरोपीय ममालिक को, खसूसन बरतानिया में भेजे गए। इसमें से ये नहीं कि उन्होंने जो है सिर्फ लीडर से बातचीत की, बल्कि वहाँ की जो राय आमा थी उससे ना सिर्फ हुकूमतों को आगाह किया बल्कि अवाम को भी ये बताने की कोशिश की कि जी इस वक्त मुसलमानों के साथ क्या मसला दरपेश है। तो जब वो बरतानवी वज़ीर आज़म लॉर्ड जॉर्ज से मिले तो उसने उसे कोई उम्मीद अफजा जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि जैसा इंसाफ जर्मनी से हुआ, जैसा ऑस्ट्रिया से हुआ, बिल्कुल वही तुर्की से होगा। यानी उसके कहने का मतलब था कि जैसे हमने जर्मनी के हिस्से बखरे किए हैं, जैसे हमने ऑस्ट्रिया को तकसीम किया है, वैसे ही हम जो है वो तुर्की को तकसीम करेंगे। तो मुसलमान वफ्द जो था वो बहुत ही ज़्यादा बुझे दिल के साथ वापस आया। तो बहरहाल मुसलमानों ने अपनी जो सरगर्मियाँ थी वो जारी रखी। उन्होंने हिंदुस्तान से डॉक्टरों और नर्सों के ग्रुप भेजे ताकि तुर्क मुजाहिदीन की मरहम पट्टी हो। तुर्क हुकूमत को रकूम मुहैया की गई, कसीर दौलत करेंसी सोने और चांदी की शक्ल में जमा करके तुर्की की इमदाद के लिए रवाना की गई। बड़े सगीर के अंदर जलसे मुनज़्ज़म किए गए, हड़तालें की गई और मुस्लिम अवाम ने गिरफ्तारियाँ पेश की और इतनी गिरफ्तारियाँ दी कि जेलों में ही जगह ख़त्म हो गई। अब इस तहरीक खिलाफत में मौलाना मोहम्मद अली जोहर और मौलाना शौकत अली की वालदा का किरदार भी अहम है, यानी इसमें ख़वातीन भी हैं। तो इन दिनों ये नारा बहुत मकबूल था, कहती है अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा अपनी खिलाफत पे दे दो। यानी जान माल की कोई परवाह नहीं है। इस तहरीक के दौरान मुसलमान सब कुछ अपना लुटाना चाहते हैं। ठीक है, और मुस्लिम सहाफ़त भी बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है। मसलन मौलाना ज़फ़र अली खान का एक अखबार ज़िम्मेदार है, वो इस बारे में लिख रहा है, रायनामा हमवार कर रहा है, यानी लोगों को इस तरफ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शऊर देने के लिए वो बता रहा है। मौलाना आज़ाद ने अल हिलाल अखबार के अंदर ये लिखा और मौलाना मोहम्मद अली जोहर ने कामरेड अखबार के ज़रिए से मुस्लिम अवाम के ज़हनों में तूफ़ान पैदा किया। अब गांधी का भी इसमें किरदार है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब जैसा कि हमारे लीडर्स जो थे वो चले गए जब जेल में,
तो गांधी को ये मौका मिल गया कि वो मुसलमानों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करे। ज़ाहिर है उसने ये तो नहीं कहना था, उसने आकर कहा कि जी ये आपका मजहबी मसला है तो हम इसमें आपके साथ भरपूर तरीके से शिरकत करना चाहते हैं, कांग्रेस भी ताउन करना चाहती है, इस तहरीक में हिस्सा लेना चाहती है क्योंकि आपके मजहबी जज्बात मजरूह हो रहे हैं और हम आपके साथ बिला मशरूत इस तहरीक में शामिल होते हैं। तो गांधी ने इस तहरीक की क़यादत संभाल ली। असल में गांधी जो था वो इसी जंग के दौरान उसने भी तहरीकें शुरू कर रखी थी। अदम ताउन की तहरीक, यानी हुकूमत से ताउन नहीं करना, नॉन कोऑपरेशन करनी है, तर्क मवालात के हुकूमत ने जो दिया है उसको वो उसकी तरफ से कोई इमदाद नहीं जो है कबूल करनी, और सिविल नाफरमानी यानी कि हुकूमत का कोई हुक्म नहीं मानना, इस तरह की तहरीकें उसने शुरू की हुई थी। तो वो तहरीक खिलाफत में शामिल होकर वो मुसलमानों को भी अपनी तहरीकों में शामिल करना चाहता था ताकि वो यहाँ से हुकूमत बरतानिया को निकाले और अपनी हुकूमत कायम करे। तो उसने मुसलमानों को ये मशवरा दिया कि वो भी हुकूमत की तरफ से दिए गए अलकाबात वापस कर दें। मसलन किसी को सर का खिताब, किसी को जनाब नवाब बहादुर का, किसी को कोई अलकाब दिया हुआ है तो ये आप वापस करें। सरकारी मुलाजमतें अव्वल तो मुसलमानों के लिए थी ही नहीं, जो थोड़ी बहुत थी उसने कहा जी इस्तीफे दे दें। फिर उसने कहा आप गिरफ्तारियां दें, महसूल यानी टैक्स देने से इनकार करें, हुकूमत की जानिब से मिलने वाली इमदाद लेने से इनकार कर दें, पहले ही कौन सा इतनी मिलती थी। और उसने ये फतवे भी दिलवाए मुसलमान जो उलमा थे कि जी मुसलमान अपना घर बेच के अफगानिस्तान चले जाएं क्योंकि ये दारुल हर्ब है, यहाँ पर उनके लिए जो है उनका ईमान भी खतरे में है। तो वो बेचारे ये अपना सब कुछ बेच कर अफगानिस्तान गए और वहाँ के लीडरों ने जी जनाब हुक्मरानों ने मुसलमानों को आने ही ना दिया, तो वो लूटे पटे फिर वापस हिंदुस्तान आ गए। मुसलमान रहनुमा और अवाम गांधी की साजिश को समझ ना सके, उसकी बातों में आकर ऐसे इकदाम उठाए कि मुसलमानों की मईशत, तालीम और सियासी हालत पर बेहद बुरा असर पड़ा। और बेपनाह नुकसान उठाने के बाद मुसलमानों की जब आंखें खुली और उन्हें गांधी का असली चेहरा पहचानने का मौका मिला तो जनाब उस वक्त तक तो देर हो चुकी थी। तो जंग अजीम अवल के खात्मे पर जब गांधी ने यह महसूस किया कि वो हुकूमत को ब्लैकमेल करके अपने मकासद हासिल नहीं कर सकेगा, तो उसने मुसलमानों से पूछे बगैर तहरीक के खात्मे का ऐलान कर दिया, जिससे मुसलमानों को शदीद मायूसी हुई। यानी तहरीक तो अपने एक पीक पर थी और बड़ा जोश व जज्बा था इसमें, और वो मुसलमानों के इसी जोश व जज्बे को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता था। उसने एक छोटे से वाक़े को बुनियाद बनाया। एक थाना था, एक जगह पे चोरा चोरी एक जगह थी, वहाँ पे एक थाना था जहाँ मुश्तैल हजूम ने जब आग लगाई तो वहाँ पर इंस्पेक्टर और सिपाही जो थे तकरीबन 20-22 लोग जिंदा जल के मर गए। तो उसने कहा कि जी इस तहरीक के अंदर तो अब वायलेंस शामिल हो गया है, तो मैं तो अहिंसा का मानने वाला हूँ, अदम तशद्दुद पर यकीन रखता हूँ। तो उसने बहाना बनाकर तहरीक को ही ख़त्म करने का ऐलान कर दिया, जबकि वो अपने मकासद के करीब थी। अब दूसरी तरफ से तुर्की का क्या हुआ? तो तुर्की जो शिकस्त के करीब था, उसके एक जनरल गाजी मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने बिखरी हुई तुर्क अफवाज को दोबारा इकट्ठा किया, उनमें हौसला पैदा किया और मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने तुर्क खलीफा को खुद ही इक़्तिदार से अलग करके मुल्क की सरबराही खुद संभाल ली। रूस और बरतानिया दोनों तुर्की पर कब्जे का इरादा रखते थे, लेकिन उनकी बाहमी रकाबत तुर्की की सलामती का सबब बन गई। इत्तेहादियों ने मुस्तफ़ा कमाल पाशा से एक मुआहदा लवाजन के नाम से किया। उन्होंने उससे एक मुआहदे पर दस्तखत करवाए जिसमें जो अब मौजूदा तुर्की है सिर्फ वो उसके हवाले किया गया और बहुत से इलाके जो थे उससे ले लिए गए। ठीक है, यानी मशरिक़ वस्ता, शुमाली अफ्रीका के काफ़ी इलाकों पर तुर्की का कंट्रोल ख़त्म हो गया। हिजाज मुक़द्दस को अरबों के हवाले किया गया। तो यूं दर हकीकत जो तहरीक खिलाफत के मकासद थे वो किसी हद तक पूरे हुए। कैसे कि जी तुर्की पूरे का पूरा उसके हिस्से बखरे नहीं हुए। ये जो मुसलमानों ने इतनी ज़्यादा तहरीक चलाई उसका फ़ायदा ये हुआ कि तुर्की बतौर एक मुमलिकत के बाकी बच गया, अगरचे उसके बहुत से इलाके उससे ले लिए गए। और दूसरी जो चीज़ अहम थी वो ये कि हिजाज मुक़द्दस में गैर मुस्लिम अफवाज दाखिल नहीं हुई और वो कंट्रोल अरब मुसलमानों को यानी आले सऊद को दिया गया है। ये भी चले शुक्र की बात है कि खुद उन्होंने कब्जा नहीं कर लिया, उन्होंने जो है मुसलमान मुल्क के हवाले ही हिजाज मुक़द्दस को किया। भारत तुर्की का जो था वो इस पर कंट्रोल ख़त्म हो गया और जिस मकसद के लिए ये तहरीक चलाई गई थी कि ये खिलाफत को बचाया जा सके वो ना बच सकी, क्योंकि वो तो वो चाहते ही नहीं थे कि खिलाफत हो या मुसलमानों का एक मरकज़ हो जिस पे मुसलमान एक मरकज़ पर इकट्ठे हों और वो एक कुव्वत बने।
वो उनका पहला टारगेट यही था, वो उन्होंने ख़त्म किया और तुर्की बहैसियत एक सल्तनत के ख़त्म हो गया। यानी जो वो इतनी बड़ी सल्तनत थी वो ख़त्म हो गई, तुर्की अब एक मुल्क जैसे है वो बाकी है। तो ये है जनाब आपकी तहरीक खिलाफत।